ملے ٹائمز میں خوش آمدید۔ مسلمانوں کا کوئی تہوار ہو اور اس کے خلاف ہنگامہ برپا نہ کیا جائے، مسلمانوں کو تہوار پر عمل کرنے سے روکا نہ جائے، یہ ہندوستان میں اب نہیں ہو سکتا ہے۔ روایت بن چکی ہے، رمضان کا مہینہ ہو، عید الفطر کا موقع ہو یا عید الاضحیٰ کا موقع ہو یا پھر کوئی اور مسلمانوں کا تہوار ہو، جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ سامنے آتا ہے، مسلمانوں کے خلاف ایک طبقہ زہر اگلنے لگتا ہے۔ میڈیا میں، سوشل میڈیا پر ہر جگہ مسلمانوں کے خلاف نگیٹو پروپیگنڈا شروع کر دیا جاتا ہے، اور اب یہی ہو رہا ہے بقرعید کے موقع سے بھی۔ 7 جون کو پورے دیش میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی اور اگلے 3 دنوں تک مسلمان قربانی کا فریضہ ادا کریں گے، لیکن اب ٹی وی چینل پر، سوشل میڈیا پر ہر جگہ قربانی پر بین لگانے کی مانگ کی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ مسلمانوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ جانور ذبح کرنے کی جگہ کیک کاٹنے کا کام کرے۔ مہاراشٹر کی حکومت نے تو جانوروں کی خرید و فروخت پر ہی، مویشی کی تجارت پر ہی 7 جون تک پابندی لگانے کا فیصلہ سنا دیا تھا، لیکن بہت زیادہ ہنگامہ اور اعتراض ہو جانے کے بعد اب مہاراشٹر کی سرکار نے اس فیصلے کو واپس لیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو مویشی کی وہاں تجارت ہو رہی تھی دوبارہ اس کو جاری رکھا جائے گا۔ لیکن جو سچائی ہے وہ اگر آپ جانیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ انڈیا میں بقرعید کے موقع پر جو تجارت ہوتی ہے جانوروں کی خرید و فروخت سے، چارہ کے فروخت سے یا ٹرانسپورٹیشن سے جو انکم آتا ہے وہ ٹوٹل انکم 50,000 کروڑ روپے سے زیادہ ہے، اور انڈیا کی جی ڈی پی میں تقریباً 0.15% کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے یہاں کے ہندوؤں کو، او بی سی کو، دلت کو۔ یہی لوگ زیادہ جانوروں کو پوستے ہیں، پالتے ہیں، اور پورا پیسہ ان کے پاس ہی جاتا ہے۔ اور اگر فرض کر لیجئے کہ انڈیا میں قربانی نہ ہو تو سب سے زیادہ نقصان او بی سی کا ہوگا، دلت کا ہوگا، کیونکہ یہی لوگ جانوروں کو پوستے ہیں، جانوروں کو پالتے ہیں، اور جب ان سے جانور نہیں خریدا جائے گا تو جانور ان کے پاس کس کام کے رہ جائیں گے۔ مویشیوں کی جو تجارت ہے یا جانوروں کی جو تجارت ہے دنیا کی سب سے پرانی تجارت ہے۔ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا ہے۔ کچھ جانور پیدا کیے گئے ہیں سامانوں کو ڈھونے کے لیے، سامانوں کو ادھر سے ادھر منتقل کرنے کے لیے، کچھ جانور پیدا کیے گئے ہیں سواری کے لیے، کچھ جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے دودھ کے لیے، کچھ جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں سماج کے دوسرے کاموں کے لیے، لیکن ان میں سے کچھ جانور ایسے ہیں جس کے گوشت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، اور دنیا بھر میں ان جانوروں کے گوشت کو کھایا جاتا ہے۔ کچھ ہی مذہبی کمیونٹی ایسی ہے جہاں گوشت نہیں کھایا جاتا، جس میں بدھ مت ہے اور جین مت ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً دنیا کی تمام مذہبی کمیونٹی میں گوشت کھایا جاتا ہے۔ خود ہندو دھرم میں بھی گوشت کھایا جاتا ہے۔ ہندو دھرم کا کچھ تہوار ایسا ہے جہاں جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ ان کے ہاں ثواب حاصل کرنے کے لیے یا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو ڈیٹا ہے انڈیا کا وہ یہ کہ یہاں 71% سے زیادہ لوگ گوشت کھاتے ہیں، اور مسلمانوں کی آبادی انڈیا میں تو صرف 14% ہے۔ تو مطلب 56% سے زیادہ لوگ جو بچ گئے وہ کون ہے انڈیا میں جو گوشت کھاتے ہیں، اور یقینی طور پر وہی لوگ ہیں جو مسلمانوں پر صرف گوشت خوری کا یا گوشت کھانے کا الزام لگاتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ نقصان قربانی پر بین لگنے سے ہوگا او بی سی کا، دلت کا۔ آپ سمجھیے بقرعید کے موقع پر قربانی کی وجہ سے جو جانوروں کی تجارت ہوتی ہے، جو دوسرے کام ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے انڈیا کی اکنومی میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، کئی کمیونٹی کا نقصان ہو جائے گا، اور یہ نقصان ناقابل برداشت ہے۔ قربانی کا جو مذہبی فائدہ وہ الگ ہے، قربانی کی اسلام میں اہمیت وہ الگ ہے، قربانی مسلمانوں کے ہاں واجب ہے، ایک الگ موضوع بحث ہے، لیکن خود انڈیا کا، انڈیا کی سرکار کا، انڈیا کی مختلف کمیونٹیز کا قربانی کی وجہ سے بے پناہ فائدہ ہوتا ہے، اور قربانی کی وجہ سے جو انکم آتی ہے وہ دیش کی 10 ریاستوں سے زیادہ ہے۔ یعنی دیش کی 10 ریاستیں ایسی ہے، دیش کے 10 اسٹیٹ ایسے ہیں جہاں کا جو اینول بجٹ ہے اس سے زیادہ صرف قربانی سے انڈیا کو رقم حاصل ہوتی ہے۔ اور آپ اس کو تفصیل سے سمجھیے، قربانی کے موقع پر ہر سال انڈیا میں 1.5 کروڑ سے زیادہ بکرے کی
की, भेड़ की, इस तरह के छोटे जानवरों की फ़रोख्त होती है और एक बकरे की कीमत कम से कम तकरीबन 10,000 15,000 होती है। ज़्यादा से ज़्यादा बकरे की कीमत 1 लाख भी होती है, 2 लाख भी होती है। आप बकरे की मार्केट में जाएंगे तो कोई आपको 1 लाख का भी बकरा मिलेगा, कोई 50,000 का भी मिलेगा। लेकिन अगर औसत रेट रखा जाए बकरे की कीमत का तो एक बकरे की औसतन कीमत पूरे देश में 25,000 रुपये से ज़्यादा होती है, कम नहीं होती है और ज़्यादा की कोई हद नहीं है। और ये जो टोटल रकम है, अगर औसतन 25,000 रेट माना जाए तो 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ बकरे की कीमत हो जाती है 37,500 करोड़ से ज़्यादा। उसके बाद जो बड़े जानवर है जिसमें बैल है, गाय है, भैंस है, इस तरह के जो जानवर है इनकी भी तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा देश भर में फ़रोख्त होती है और एक बड़े जानवर की औसतन कीमत होती है 50,000 या उससे ज़्यादा। और अगर जोड़ा जाए कि 1 मिलियन बड़े जानवर की कीमत कितनी होगी तो इसकी कुल कीमत हो जाती है 5,000 करोड़ से ज़्यादा। उसके अलावा देश के कुछ इलाकों में ऊँट की भी कुर्बानी दी जाती है और ऊँट की जो कुर्बानी है ज़्यादा नहीं, पूरे देश में 5,000 से 10,000 तक ही ऊँट की कुर्बानी होती है। तो इस तरह मान लीजिए कि एक ऊँट की जो औसतन कीमत होती है वो 1 लाख रुपये या उससे ज़्यादा, और अगर 5,000 या 1,000 ऊँट की कुर्बानी होगी तो उसकी जो टोटल कीमत है वो 500 से 1,000 करोड़ तक पहुंचेगी। तो टोटल जो जानवर बिकते हैं कुर्बानी के मौका पर, यानी बकरा, भेड़, बड़ा जानवर या ऊँट, इन सब की जो टोटल वैल्यू है वो 43,000 करोड़ रुपया है, यानी 430 बिलियन। इसके अलावा भी दूसरे लोगों का कुर्बानी के मौका पर फ़ायदा होता है। जैसे कुर्बानी का जो जानवर है वो पहुंचता है मार्केट में तो ट्रकों से या दूसरी गाड़ियों से कुर्बानी का जानवर आता है तो ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए भी 1,000 से 2,000 करोड़ की इनकम जनरेट होती है कुर्बानी की वजह से। उसके अलावा जानवरों का जो चारा होता है, जानवरों को जो सामान खिलाया जाता है यानी एनिमल फूड आप कह लीजिए, तो उसकी जो तिजारत है वो भी 3,000 करोड़ से ज़्यादा की हो जाती है इस मौका पर। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल जाता है, जॉब मिल जाता है, जैसे वर्कर्स है, ड्राइवर्स है या बूचर्स है, यानी जो कसाई है उनका एक रोज़गार हो जाता है। जानवरों को ट्रक पर लोड करना है, ट्रक से उतारना है, उनकी एक तरह से उनको ये नौकरी मिल जाती है। ट्रक ड्राइवर्स को काम मिल जाता है, दूसरे लोगों का काम हो जाता है। तो ये जो रेवेन्यू है ये भी 10,000 करोड़ से ज़्यादा का हो जाता है। उसके अलावा जो लेदर इंडस्ट्री है उसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है और इंडिया दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जहां लेदर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और रॉ मटेरियल्स ही सिर्फ 2,000 करोड़ से ज़्यादा का हो जाता है। लोकल मार्केट का भी फ़ायदा हो जाता है बहुत ज़्यादा सामानों की वजह से। और इस तरह टोटल अगर इंक्लूड किया जाए तो कुर्बानी के मौका पर ये टोटल इनकम 50,000 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है। इंडिया की जो टोटल इकोनॉमी है वो 300 लाख करोड़ की है, यानी 3.7 ट्रिलियन डॉलर की, और 50,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन इंडिया की जीडीपी में 0.15% का हो जाता है और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इंडिया की 8 से 10 रियासतें ऐसी है जहां का जो टोटल एनुअल बजट है वो इससे कम है। और अब मिसाल के तौर पर समझिए, जैसे मिज़ोरम है, वहां का टोटल बजट है सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए का। सिक्किम का एनुअल बजट है 12,000 करोड़ रुपए का। नागालैंड का एनुअल बजट है 24,000 करोड़ रुपए का। त्रिपुरा का एनुअल बजट है 27,000 करोड़ रुपए का। मणिपुर का एनुअल बजट है 35,000 करोड़ रुपए का। गोवा का एनुअल बजट है 25,000 करोड़ रुपए का। अरुणाचल प्रदेश का एनुअल बजट है 29,000 करोड़ रुपए का। पुडुचेरी का एनुअल बजट है 11,000 करोड़ रुपए का। अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है वहां का जो एनुअल बजट है वो 8,000 करोड़ रुपए का। और कुर्बानी के मौका पर इनकम आ रही है 50,000 करोड़ से ज़्यादा। तो कई स्टेट से ज़्यादा कुर्बानी के मौका पर रकम आ रही है। और इन कुर्बानी के जानवरों का फ़ायदा किसको होता है? इंडिया में सबसे ज़्यादा जानवरों को जो लोग पोसते हैं, पालते हैं, उसमें पहले नंबर पर ओबीसी है, यादव सबसे ज़्यादा है। उसके बाद दलित समाज के लोग हैं। कुछ मुसलमान भी जानवरों को पोसते हैं, पालते हैं, लेकिन मुसलमानों में अब जानवरों को पोसने का, पालने का रिवाज कम हो चुका है। जिन स्टेट में ज़्यादा मवेशी का कारोबार होता है उसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, झारखंड है,
है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, तो इस तरह के जो स्टेट है ये ज़्यादा जानवरों को पोसने का, पालने का काम करते हैं और इसकी वजह से इंडिया में लाखों लोगों का फ़ायदा होता है। तो अब ज़रा सोचिए इस डेटा के सामने आ जाने के बाद कि कुर्बानी से किसका ज़्यादा फ़ायदा होता है, कुर्बानी का कौन ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, और अगर कुर्बानी को बैन कर दिया जाए तो किसका नुकसान होगा। अब लोग लगातार सोशल मीडिया पर ज्ञान आकर बांट रहे हैं। मोरक्को की हुकूमत ने अपने यहाँ जानवरों को ज़बह करने से रोक दिया है और उसकी वजह यह है कि मोरक्को में जानवरों की कमी है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अब उसको मिसाल के तौर पर इंडिया में पेश किया जा रहा है। बड़े बड़े एंकर टीवी चैनलों पर डिबेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं मोरक्को में जानवर को ज़बह करने से रोक दिया गया है, फिर इंडिया में जानवरों की कुर्बानी क्यों होगी। महाराष्ट्र का एक मिनिस्टर है, वो कहता है कि इंडिया में या महाराष्ट्र में कुर्बानी करने पर पाबंदी रहेगी, कुर्बानी नहीं करने दिया जाएगा। बीजेपी का एमएलए है, वो आकर ये कह रहा है कि लोग केक को काटें, जानवर को ज़बह न करें। ये किस तरह की नॉनसेंस बातें हैं जिसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। तुम लोग भी अपने मजहब पर अमल करते हो, तुम लोग भी जानवरों को ज़बह करते हो, हमने तो कभी नहीं रोका, और अब हम अपने कुर्बानी का फरीज़ा अदा कर रहे हैं तो तुम क्यों रोक रहे हो। और कुर्बानी की वजह से देश की जीडीपी में 0.15% का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, 50 लाख से ज़्यादा की इनकम जनरेट हो रही है, देश की इकोनॉमी मजबूत हो रही है, लाखों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। देश की 8 से 10 रियासतें ऐसी है जहां का एनुअल बजट इससे कम है। तो इतना बड़ा फ़ायदा देश की इकोनॉमी में, मईशत में मुसलमानों की वजह से हो रहा है, कुर्बानी की वजह से हो रहा है, और इसी वजह से कुर्बानी को हर लिहाज से बहुत अहम माना जाता है। यानी मुसलमान के लिए एक फरीज़ा की अदायगी है, लेकिन उससे ज़्यादा गरीबों का भला है, तिजारत है, देश की इकोनॉमी की बढ़ोतरी हो रही है। और यही वजह है कि इस्लाम के हर अमल में, मजहब इस्लाम के हर फैसले में, मुसलमानों के हर त्यौहार में मजहबी फ़ायदा भी होता है, ज़ाती फ़ायदा भी होता है, समाजी फ़ायदा भी होता है, माशी फ़ायदा भी होता है, देश का भी फ़ायदा होता है, आवाम का भी फ़ायदा होता है, सभी कम्युनिटी का फ़ायदा होता है। यही मजहब इस्लाम की खूबी है और मजहब इस्लाम की यही खूबी इन लोगों को बर्दाश्त नहीं है। अगर आज मुसलमानों ने कुर्बानी करना बंद कर दिया, मुसलमानों ने जानवरों को ज़बह करना बंद कर दिया, तो फिर देश में जानवरों का जो कारोबार है कम हो जाएगा। लोग जानवरों को पोसना, उसकी परवरिश करना छोड़ देंगे और फिर इंडिया का भी वही हाल हो जाएगा जो आज मोरक्को का हाल है। तो मुसलमानों का एहसान मंद होना चाहिए था इन लोगों को, लेकिन इसका फ़ायदा जानने के बजाय, इसके डीप में जाने के बजाय महज मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर, इस्लामोफोबिया की बुनियाद पर लोग कुर्बानी की मुखालफत करने लगे हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। आप तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की पेशगी मुबारकबाद।